Okay, Assalamu alaikum and good afternoon. Can you hear me, all of you? Okay, that's good. Okay, so we have some real good bulk of syllabus to cover today. Though it's all easy, but still we need to concentrate on that and we need to be quick about it. Okay, so I'll start right away. So yesterday we did up till this. That was basically the last graph of the carbon dioxide. That how the blood flow and how the metabolism affect the partial pressure of carbon dioxide in peripheral tissues, right? So that was the last graph yesterday. So now we will come back to oxygen, and most of the today's lecture would be about oxygen. We will talk about the carbon dioxide as well. So, a role of hemoglobin in oxygen transport, as we all know, that 97% of the oxygen transported from the lungs to the tissues is carried in combination with hemoglobin in RBCs. Now, only 3% is transported in the dissolved state in the water of the plasma and blood cells, right? So, main means of transport for oxygen in the human body is hemoglobin, and only 3% is in dissolved form. Now, this as the 97% is with hemoglobin, so that means that the bond between the hemoglobin and oxygen is very important. Now, it's a reversible combination. It's a reversible chemical combination. So the O2 molecules, the oxygen molecules combine loosely and reversibly with the heme portion of the hemoglobin. And can somebody tell me that how many uh, molecules of oxygen can attach to one molecule of hemoglobin? Four. Four molecules or eight atoms of oxygen, right? Okay. So when the PO2 is high, as in pulmonary capillaries, so O2 will bind with hemoglobin. But when the PO2 is low, as in tissue capillaries, so O2 is released from the hemoglobin. So what we are actually looking for is that the oxygen in the alveoli should bind with the hemoglobin in the pulmonary capillary blood. And when it reaches this pulmonary capillary blood, when it is converted into arterial blood, and when it reaches the tissue capillaries, over there it should be able to release the oxygen for the use in tissues. So that is the law of the human body. That's how of a normal human body, right? That's how it acts. Now, this is something a very important. This is something very important. Oxygen hemoglobin dissociation curve. This is a university question, right? And a very conceptual one as well. Now, this uh, this is the curve. This is the graph that we are talking about. So it has got gradations on three sides. It has got uh, on x-axis it has got pressure of oxygen in blood, that is the partial pressure of oxygen in blood, and that is in millimeters of mercury. On the y-axis, on the left, it has got hemoglobin saturation percentage, and on the right it has got volume percentage. Now this volume percentage again is the percentage of uh, oxygen in the blood, right? Again, this is percentage of oxygen in the blood, right? So we will see that how do we need to relate all these three. So that is why it's a bit complex, but once you get the concept, it would be okay. Now, this curve demonstrates a progressive increase in the percentage of hemoglobin bound with O2 as blood PO2 increases, saturation of hemoglobin. This one. So as the saturation of hemoglobin increases, there is percentage of hemoglobin that is bound with O2, right? When the PO2 increases, what happens? The percentage of hemoglobin bound to oxygen increases, right? This is saturation of hemoglobin. That is what we call आप आप आजकल सुन रहे होंगे कि जी वो उसकी जो कोरोना में कि जो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बड़ी नीचे आ गई. सो दिस इज द वन. वो ये है जो कि यूजुअली 95, आइडियली 97 होनी चाहिए,
ठीक है, लेकिन यूजुअली 95 होती है, 95 से नीचे नहीं होती। ठीक है, 90 तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, गो के इट रेजेस अ फ्यू अलार्म्स, लेकिन 90 तक एक्सेप्टेबल है। 90 से नीचे फिर डेंजरस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, देन इट बिकम्स अ रियल मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ये वही परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है जिसकी आजकल कोरोना में बहुत ज्यादा बात की जाती है। ठीक है, नाउ होता क्या है, blood leaving the lungs and entering the systemic arteries usually has a pH of about 95 millimeters of mercury. ये बात हमने कल भी देखी थी। ठीक है, now usual oxygen saturation of systemic arterial blood at this 95 millimeters of mercury is 97%. ठीक, अगर आप इसको इस चार्ट में देखें तो आपको यहां से पता चलेगा। ये देखिए, अगर ये 95 जो पार्शियल प्रेशर है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, अगर ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक अपवर्ड परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो ये देखें ये कहां मिलती है जाके, इट इज ऑलमोस्ट 97। ठीक है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। ठीक, अगर हम यहां से इसको ये ड्रॉ करें तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन पे हम ऑलमोस्ट 97 पे आके हमारा पॉइंट बनता है। ठीक है, तो वो बताना ये चाह रहा है बेसिकली कि जो usual oxygen saturation of systemic arterial blood, usual, ideally, ठीक है, when there is no pathology, everything is okay, all physiological, तो 95 mmHg पे जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की वो होनी चाहिए 97%। ठीक है, और जो नॉर्मल वीनस ब्लड है, ये तो हम आर्टीरियल ब्लड की बात कर रहे थे, जो नॉर्मल वीनस ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर कहाँ जाता है, 40 पे। तो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जो है वो कहाँ आ जाती है, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन विद हीमोग्लोबिन है वो कहाँ आ जाती है, 75 पे। अगेन हम इसी चार्ट पे जाते हैं तो ये हमें बताएगा, ये देखें ये 40 है। अगर पहले क्या था 95 पे हम देख रहे थे, अब हम आगे 40 पे। तो अगर हम यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये देखें ये अराउंड 75 की आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वो हैं जो कि आइडियल फिगर्स हैं, एट रेस्ट हैं और एक फिजियोलॉजिकल पर्सन में है। ठीक है, ये वो फैक्ट्स हैं, ये वो स्टैट्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा और आगे देखते जाते हैं, कुछ और चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी, अभी कुछ और फैक्ट्स हैं, कुछ और स्टैट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि वो हम इस कर्व में और उनको ऐड कर सकें। ठीक है, नाउ वो क्या है, ब्लड कंटेन्स अबाउट 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड हो तो उसमें अराउंड आइडियली नॉर्मली फिजियोलॉजिकली 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, अब जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है इट कैन बाइंड विद अ मैक्सिमम ऑफ 1.34 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आइडियली इसको करना चाहिए 1.39 के साथ, लेकिन ये कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से जो प्रैक्टिकली है वो हमें 1.34 ही मिलता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली एट रेस्ट जो है वो फिजियोलॉजिकली 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद अ मैक्सिमम ऑफ 1.34 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम ये 15 ग्राम को इस 1.34 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20.1 आ जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज the 15 gram of hemoglobin in 100 ml of blood can combine with a total of about 20 ml of O2 if the HB is 100% saturated। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हो, ठीक है, तो जो ये जो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है ये कितनी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकती है, 20 ml को। ठीक है, इसको हम यहां से देखते हैं, ये देखो ये जो तीसरा था ना जो मैं कह रहा था कि राइट पे वॉल्यूम परसेंटेज है, तो अब ये हमें ये बता रही है कि अगर हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन विद ऑक्सीजन 100% है तो ये जो 15 ग्राम्स हमने निकाला था कि जी मैक्सिमम 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन हो सकते हैं 100 ml ऑफ ब्लड में, तो ये कितनी ऑक्सीजन बाइंड करेंगे 15 ग्राम्स, 20.1 लीटर्स, जो कि ये है। तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो तीन चीजें आ गई इसमें। ठीक, एक इसमें आ गई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि पार्शियल प्रेशर आ गया, एक तरफ आ गया हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आ गई, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक चीज आ गई वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है और ये जो वॉल्यूम परसेंटेज है ये दोनों ही पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट है। ठीक है,
पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा तो ये दोनों ही कम होते जाएंगे, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ये दोनों ही बढ़ेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ये कभी भी 100% से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, वो कोई भी चीज नहीं जा सकती, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि ये 100% से ऊपर चली जाए, वो पॉसिबल नहीं, ठीक। अच्छा, अब हम इसको और फर्दर आगे लेके चलते हैं, इसी ग्राफ को और इसी के बारे में कुछ और डेटा को, इसी से हम कुछ और चीजें डिराइव करते हैं, ठीक है, इन्फ्रेंसेस कुछ ड्रॉ करते हैं। नाउ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन व्हेन सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड फ्लोज थ्रू टिश्यूज। सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड हमने कहा कि उसकी आइडियली जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 97% होनी चाहिए, ठीक है। अब वो कहता है कि जब ये आर्टीरियल ब्लड जो है जब ये गुजरता है टिश्यूज में से, तो ऑफ कोर्स इसकी ऑक्सीजन जो है वहां पे गिव अप हो जाती है, बहुत सारी ऑक्सीजन इसकी गिव अप हो जाती है, ठीक है। तो एट रेस्ट, फिर हम बात कर रहे हैं एट रेस्ट, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बाउंड विद एचबी इन नॉर्मल सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड, ये अभी जो मैं बात कर रहे थे, विच इज 97%, ठीक है, सैचुरेटेड इज अबाउट 19.4 मिलीलीटर्स पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये देखो, इसको आपने इधर ले आना है, ये 97% है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें या 19.4 पे आएगा, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन जो है इट इज 100% सैचुरेटेड थी, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज कितनी थी, 20.1% थी। जब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 97 पे आ गई, तो ये जो वॉल्यूम परसेंटेज है ये कहाँ आ गई, 19.4 पे आ गई, ठीक है। तो अब बताओ ये रहा है हमें कि आफ्टर पासिंग थ्रू द टिश्यू कैपिलरीज, ये तो वो है जो कि मैक्सिमम सैचुरेशन पे है, जबकि अभी आर्टीरियल ब्लड की बात हो रही है, और आर्टीरियल ब्लड जो है वो अभी टिश्यू कैपिलरीज में से नहीं गुजरा, जहां उसने अपनी ऑक्सीजन गिव अप कर दी। तो वो ये बता रहा है कि एट रेस्ट after passing through the tissue capillaries, this amount is reduced on average to 14.4 milliliters of, ठीक है, ये जो थी ना, हम कह रहे थे कि जी 20 पॉइंट या 19.4 थी, ठीक है, 19.4 थी ना यहाँ पे हमारे पास सैचुरेशन 19.4, तो जब ये गुजरती है टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू, तो उसके बाद ये कम होके 14.4 पे आ जाती है, इस पॉइंट, ठीक है, कहाँ आ जाती है, 14.4 पे, यानी कि ये 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो गिव अप करती है, ठीक है। So after passing through the tissue capillaries, this amount is reduced on average to 14.4 ml, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कहाँ पे आ जाता है, 40 mmHg पे आ जाता है, और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कहाँ आ जाती है, 75 पे आ जाती है। ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं, ये देखो 14.4 पे आ गई, यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये 75 पे आ गया, और यहाँ से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये पार्शियल प्रेशर ऑलमोस्ट 40 पे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक इन तीनों का आपस में रिलेशन है, ठीक है। ऑक्सीजन कम हुई तो पार्शियल प्रेशर भी कम हुआ, ठीक है, और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी कम हुई और वॉल्यूम परसेंटेज भी कम हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी ग्राफ में से हम डिपिक्ट कर रहे हैं। नाउ अंडर नॉर्मल कंडीशंस अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज बाय ईच 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो। तो इससे हम एक ये भी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि अंडर रेस्टिंग कंडीशंस एंड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज में या पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन एट रेस्ट एंड अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन is transported from the lungs to the tissues by each 100 ml of blood flow। यानी कि अगर एक 100 ml ब्लड फ्लो करता है, किसी टिश्यूज के थ्रू फ्लो करता है, तो वो कितने ml ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करता है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये आउट ऑफ कितनी होती है, 19.4 जो वो कैरी कर रहा होता है। अब देखो फिर वही बात आ जाती है, अगर वो 19.4 कैरी कर रहा है तो 5 क्यों दे रहा है, ज्यादा क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि रिक्वायर्ड ही यही है, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो फिर बाकी भी इस्तेमाल होगी, बहुत सारी बाकी भी इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये वही बात फिर आ जाती है कि के ह्यूमन बॉडी में ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ये उतनी ही दी जाती है जितनी रिक्वायर्ड होती है, और बाकी को एज अ सेफ्टी फैक्टर प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, ओके।
अच्छा जी, अब वो दिखा रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। ये इस डायग्राम में बेसिकली वो इफेक्ट ऑफ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज मार्कडली इंक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। ये है वही, देखो ये है वही डिसोसिएशन कर्व है बेसिकली, ठीक है, ये और कुछ नहीं है वही, लेकिन अब उसने इसमें साथ एक्सरसाइज ऐड कर दी है कि एक्सरसाइज में क्या होता है। एक्सरसाइज में जो है वो during heavy exercise the muscle cells use O2 at a rapid rate, of course, which in extreme cases can cause the muscle interstitial fluid PO2 to fall from the normal 40 mmHg to as low as 15 mmHg। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कल, वो जो एक डायग्राम हमने देखी थी कि जी जो इंटरस्टिशियल टिश्यू के अराउंड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें PO2 नॉर्मली एट रेस्ट कितना होता है, 40 mmHg होता है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये कम होकर 15 mmHg पे भी जा सकता है। ठीक है, now at this low pressure only 4.4 ml of O2 remains bound with hemoglobin in each 100 ml of blood। पहले कितनी थी 100% पे 19.4, जब वो एट रेस्ट जब वो टिश्यू से गुजरा तो कितनी रह गई 14.4, लेकिन जब एक्सरसाइज के दौरान वो वहां से गुजरता है तो कितनी रह जाती है 4.4, यानी कि पहले 5 ml निकला था एट रेस्ट, अब 15 ml निकल गया, ऑफ ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, ये अब इस चार्ट में देखें, यहां उसने कैसे दिखाया, ये देखें, अगर पार्शियल प्रेशर रह गया 15, ठीक है, पार्शियल प्रेशर रह गया 15, तो देखें अगर आप यहां से ये लाइन ड्रॉ करें तो ये 4.4 पे चली जाती, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन इन ब्लड कितनी रह गई है 4.4 रह गई। ठीक, और ये कब हुआ है, ये एक्सरसाइज में हुआ है। ठीक है, जब वीनस ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है ना, उसकी पार्शियल प्रेशर भी उसका बड़ी तेजी से चेंज हो जाता है और उसकी जो ऑक्सीजन वॉल्यूम परसेंटेज है वो भी बड़ी तेजी से चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स नेचुरल है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो ऑक्सीजन ज़ाहिर डिप्लीट होगी। ठीक है, और उसका पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ इस डायग्राम में वो ये दिखा रहा है। ठीक है, सो वो ये बता रहा है कि 19.4 minus 4.4 और 15 ml is the quantity of oxygen that is actually delivered to the tissues by each 100 ml of blood flow। रेस्ट पे कितना किया था 5 ml। ठीक है, यहाँ पे कितना कर रहा है 15 ml, ईच 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो, रेस्ट पे 5 ml ऑफ ऑक्सीजन दे रहा था और ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो अप टू 15 ml तक दे सकता है। ठीक है, so 3 times as much O2 as normal is delivered in each volume of blood that passes through the tissues। ठीक है, अब ये देखो ये 3 times की बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको 3 एग्जांपल्स जो मैं खुद आपको पढ़ा चुका हूं इसी बारे में, वो मैं आपको अभी तीनों रिफ्रेश करवा देता हूं 1 सेकंड में। मैंने आपको ये बताया कि जी एट रेस्ट जो है वो नंबर ऑफ कैपिलरीज जो हैं वो ओनली 1/3 जो है वो एक्टिव होती हैं, 2/3 जो है वो डॉर्मेंट रहती है, यानी कि 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैपिलरीज डॉर्मेंट पड़ी होती है। तो ये एक 3 टाइम्स का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि जी जो होता है, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये भी 3 टाइम्स बढ़ गई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो पहली 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी है, उसमें गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो जाती है एट रेस्ट। बाकी 2/3 जो है, यानी कि बाकी 3 टाइम्स जो है वो कहाँ यूज होना है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो आप ये देख लो कि नेचर ने ये सेफ्टी फैक्टर्स रखे हुए हैं, हर जगह पे आपको ये 3 टाइम्स वाला ही सेफ्टी फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, जब हम ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो देखो ये 3 टाइम्स वाला कॉन्सेप्ट कितना सॉलिड है और कितना ये फर्म है। ठीक है, कि ये हर जगह पे इट इज स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब हाँ जी, अब ये बता रहा है कि जो कार्डिक आउटपुट है ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो इंक्रीज कर जाती है। अब हमने कहा कि ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो कितनी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिलीवरी कितनी बढ़ सकती है, हमने कहा कि वो 3 टाइम्स बढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा अब हम एक नई चीज अब इसमें और ऐड कर रहे हैं कि कार्डिक आउटपुट भी तो बढ़ती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। वो कितनी बढ़ सकती है 6 to 7 टाइम्स बढ़ सकती है इन अ वेरी वेल ट्रेन्ड एथलीट, मैराथन रनर। ठीक है,
अब अगर ये इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट को हम इंक्रीज इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि थ्री टाइम्स ऑक्सीजन नहीं बड़ी हुई मिलेगी टिश्यूज को, ये अप टू 20 फोल्ड मिल सकती है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी तो बढ़ गई है ना। हमने 3 टाइम्स ऑक्सीजन तो बढ़ा ली ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लेकिन जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट बढ़ती है वो हमने नहीं बढ़ाई थी। अगर हम वो भी बढ़ा लें और उसको हम 6 को या 7 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो वो 2021 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ड्यू टू इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट दैट इज 6 to 7 फोल्ड एंड ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दैट इज 3 टाइम्स मोर, तो जो टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 20-21 फोल्ड बढ़ जाती टिश्यूज को, ठीक है। अच्छा, अभी एक बहुत और यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतना कुछ होने की, इतनी बढ़ने के बावजूद जो मसल टिश्यू पार्शियल, इतनी ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ने के बावजूद जो मसल टिश्यू पार्शियल प्रेशर है वो हार्डली नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे जाता है, इवन ड्यूरिंग वेरी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, ये वजह क्या है? यही वजह है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन उसको सप्लाई भी की जा रही है टिश्यूज को, इसीलिए उसका पार्शियल प्रेशर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। नाउ यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट क्या है? ये एक नई टर्म है। द परसेंटेज ऑफ द ब्लड that gives up its O2 as it passes through the tissue capillaries is called the utilization coefficient. यानी कि जब ब्लड वहां से गुजरता है किसी टिश्यू से, तो उस ब्लड की कितनी परसेंटेज अपनी ऑक्सीजन को गिव अप करती है, इसको हम यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। नाउ 25% ऑफ द ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन गिव्स इट्स ऑक्सीजन, ठीक है, टू द टिश्यूज, यानी कि एट रेस्ट यह बात हो रही है एट रेस्ट की, यानी कि जो ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन होती है एट रेस्ट, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है, तो एट रेस्ट वो जब टिश्यू से गुजरता है ब्लड, तो वो हीमोग्लोबिन कितना, उसका 25% ऑफ दैट हीमोग्लोबिन इट गिव्स अप इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज यही यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट जो है ये 25% से बढ़ के 75 to 85% तक बढ़ सकता है। वेरी नेचुरल, वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स सारा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है। नाउ एक और सिचुएशन अब वो बता रहा है कि इफ द ब्लड फ्लो इज एक्सट्रीमली स्लो और द मेटाबॉलिक रेट इज वेरी हाई, कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं जहां के ब्लड फ्लो स्लो है लेकिन वहां का मेटाबॉलिज्म हाई है, तो वहां का यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट एट रेस्ट भी बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई है? वहां एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो वहां ब्लड फ्लो स्लो है, वहां पे कम ऑक्सीजन जा रही है और वहां का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हाई है, बल्कि काफी हाई है, तो वहां की भी तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एक्सरसाइज ही बढ़ गई, तो वहां पे भी यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट्स जो है दे कैन अप्रोच 100%, यानी कि वो अपनी ऑलमोस्ट सारी जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी सारी ही ऑक्सीजन जो है वो गिव अप कर देती है उस टिश्यू को। तो ये उसने एक रेयर बात की है, ये रेयर एग्जांपल्स हैं इस तरह की, ठीक है, ये कोई कॉमन बात नहीं है, रेयर एग्जांपल। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो एज ए बफर कैसे काम करती है, यानी कि टिश्यू पार्शियल प्रेशर को मेंटेन करने में हीमोग्लोबिन जो है वो एज ए बफर कैसे काम करती है। बफर का मतलब तो आपको आता है ना कि बफरिंग एक्शन क्या होता है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, बफरिंग एक्शन का तो पता है ना, ठीक है। जब कोई किसी चीज को दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ जाने से रोके, तो इसका मतलब है वो उस पे उसका बफरिंग एक्शन है, ना उसको ज्यादा कम होने दे रहे हैं, ना उसको बहुत ज्यादा होने दे, ठीक है। तो इस मीन्स के, तो हीमोग्लोबिन का जो बफरिंग एक्शन है वो किस पे है, टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, ठीक है। So hemoglobin in the blood is mainly responsible for stabilizing the partial pressure of oxygen in the tissues, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे, ये होता कैसे। Now at rest the tissue requires about 5 ml of oxygen from each 100 ml of blood passing through the tissue capillaries, ये हम बात पढ़ चुके हैं। For the normal 5 ml of oxygen to be released per 100 ml of blood flow, the PO2 must fall to about 40 mmHg, ठीक है। PO2 कितना होना चाहिए वहां पे,
40 mmHg होना चाहिए, तो तब हमें ये 5 ml ऑफ ब्लड मिलेगा पर 100 ml ऑफ ब्लड फ्लो। ये बात हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। नाउ टिश्यू PO2, टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, normally cannot rise above this 40 mmHg level, because if it did, the amount of O2 needed by the tissues would not be released from the HB. क्यों? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो HB के साथ, उतना ज्यादा वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होगा ऑक्सीजन। तो हमें तो टिश्यू में चाहिए कि ऑक्सीजन रिलीज हो, ठीक है। तो इसीलिए ये कैप है कि टिश्यूज में 40 mmHg से ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नहीं जा सकता। अगर चला जाएगा तो फिर वहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो सकेगी, ठीक है। So in order to maintain a continuous delivery of oxygen to the tissues, the HB normally sets an upper limit on the PO2 in the tissues at about 40 mmHg, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक अपर लिमिट सेट कर देती है टिश्यूज में रिगार्डिंग दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इससे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। इससे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि वो रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं होने देगा हीमोग्लोबिन से और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ठीक। अच्छा जी, अब हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। ड्यूरिंग, ये तो हमने बात की एट रेस्ट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्या होता है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज as much as 20 times normal O2 must be delivered to the hemoglobin to the tissues. अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की डिलीवरी 20 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ानी पड़ सकती है, ठीक है। Now delivery of extra oxygen can be achieved with little further decrease in tissue partial pressure of oxygen because of दो बातें, steep slope of the dissociation curve, ये हमें dissociation curve पे दोबारा जाना पड़ेगा ये समझाने के लिए आपको, and increase in tissue blood flow caused by the decreased partial pressure of oxygen, ठीक है। दूसरा पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहला मैं आपको उस डिसोसिएशन कर्व पे जाके समझाता हूं। यानी कि क्या वो ये रहा है कि डिलीवरी ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, इट कैन बी अचीव्ड विद लिटिल फर्दर डिक्रीज इन टिश्यू PO2 बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टिश्यू ब्लड फ्लो कॉज्ड बाय द डिक्रीज PO2, कि जब भी PO2 थोड़ा सा कम होगा तो क्या होगा, मैसेज क्या मिलेगा बॉडी को, लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को मैसेज क्या मिलेगा कि जी इस जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं, तो वहां का ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वजह है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को की डिलीवरी को अचीव करने की, और दूसरा स्टीप स्लोप ऑफ द डिसोसिएशन कर्व, इसको समझें। यहां से ये देखें, मैंने ये दोबारा यहाँ लगा लिया इसीलिए, यहां देखें, यहां तक तो रेस्ट पे था, ठीक है, 14.4 तक। यहां से जब एक्सरसाइज शुरू होती है, अगर यहां से एक्सरसाइज शुरू होती है तो देखें कितनी स्टीप है ये, यानी कि अ वेरी स्मॉल चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिलीजेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बड़ी तेजी से फॉल करती है। इसके बाद यहां तक देखिए हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बड़ी स्टेबल है, काफी स्टेबल है, यानी कि 95 के पार्शियल प्रेशर पे ये 97 थी, ठीक है, और 40 के पार्शियल प्रेशर पे ये अभी भी 75 है, ठीक है। लेकिन जब एक्सरसाइज शुरू होती है तो देखें कि ये कितनी स्टीप है, थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर कम हुआ, 30 पे आया, चले हम देखें 40 से 30 पे आया, तो सैचुरेशन में कितना फर्क आ गया, 75 से ये 40 पे आ गया, यानी कि 35% हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन जो है वो गिव अप कर दी, ठीक है। तो ये वो वजह हैं दो जिनकी वजह से के जो है वो डिलीवरी ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैन बी अचीव्ड विद लिटिल फर्दर डिक्रीज इन टिश्यू PO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बड़ा थोड़ा सा कम होता है तो उसके रिस्पांस में जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी बहुत सारी सैचुरेशन जो है वो लूज कर देती है, गिव अप कर देती, ठीक है। So a very small fall in PO2 causes large amounts of extra O2 to be released from HB.
So Hb in the blood automatically delivers O2 to the tissues at a pressure that is held rather tightly between about 15 and 40 mmHg. यानी कि 15 mmHg से नीचे इन एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी नहीं जाना पड़ता. इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ एक्सरसाइज भी 15 mmHg से नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को नहीं जाना पड़ता टू प्रोवाइड द 20-fold ऑक्सीजन डिलीवरी. ठीक है. अच्छा जी, अब और चीजें इसमें थोड़ी ऐड हम करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स में. वो कहता है कि व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेंजेस मार्कडली, जब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेंज होती है, द बफर इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन स्टिल मेंटेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट टिश्यू PO2. तो ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं कि जी पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो ऑक्सीजन अपनी जो है वो सैचुरेशन को लूज कर देती है, ऑक्सीजन को फौरन रिलीज कर देती है. ये बफरिंग एक्शन है उसका. ठीक है, टू मेंटेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ वेरी नैरो रेंज. वो कोशिश करती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को एक बड़ी नैरो रेंज में रखा जाए. ठीक है. अच्छा, नाउ अब ये उसने एक नया सिचुएशन वो हमें एक नई सिचुएशन में हमें वो ला रहा है. वो कह रहा है कि व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेंजेस मार्कडली, द बफर इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन स्टिल मेंटेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट टिश्यू PO2. अच्छा, अब वो कहता है कि नॉर्मल PO2 इन द एल्वियोलाई वो कितनी है? 104. ठीक है. अब एटमॉस्फेयर में कितनी है? एटमॉस्फेयर में कितनी है? 159. जब वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है तो कितनी रह जाती है? रेस्पिरेटरी पैसेज में 149. जब वो एल्वियोलाई में पहुंचती है तो कितनी रह जाती है? 104 रह जाती है. ठीक है. अब यहां से हम देखते हैं कि जब इंसान हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाता है, माउंटेन्स पे जाता है, ठीक है, या एयरप्लेन में हाई ऑल्टीट्यूड पे चला जाता है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो बड़े इजीली इट कैन फॉल टू लेस देन हाफ दिस अमाउंट. जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो बड़े इजीली फॉल कर सकता है 104 के हाफ पे. ठीक है. इसी तरह ऑन द अदर हैंड when one enters areas of compressed air such as in deep sea or in pressurized chambers, the PO2 may rise, partial pressure of oxygen बढ़ भी सकता है. This is opposite to the first scenario. ये जो हमने पहले पढ़ा ये वाला scenario, ये दूसरा उससे opposite है. ठीक है. और पार्शियल प्रेशर जो है वो 10 टाइम्स बढ़ भी सकता है. ठीक है. लेकिन इन दोनों कंडीशंस में जो टिश्यू PO2 है वो चेंज नहीं होती. ठीक है. ये बात समझ में आई? एटमॉस्फेयर में चेंज हो सकती है. ठीक है. एल्वियोलाई में चेंज हो सकती है किसी हद तक. ठीक है. लेकिन टिश्यू में ये चेंज बहुत छोटी आएगी, क्योंकि अगर टिश्यू में ये चेंज बड़ी आ गई तो फिर डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बफरिंग एक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो फौरन ऑक्सीजन को या अपने साथ बाइंड करके या उसको एकदम अपने से रिलीज करके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज को जो है वो मेंटेन कर ले. ठीक है. इसको उसने थोड़ा स्टैटिस्टिकली आगे प्रूव किया हुआ है कि व्हेन द एल्वियोलर PO2 इज डिक्रीज टू एज लो एज 60 mmHg, द आर्टीरियल HB इज स्टिल 89% सैचुरेटेड. ठीक है. इसको हम कहां से देखेंगे? इसको भी हम उसी डिसोसिएशन कर्व में देखेंगे. ठीक है. कहां देखेंगे इसको? उसी डिसोसिएशन कर्व में. क्या उसने स्टैट्स दिए हमें कि जब PO2 जो है वो 60 पे आ जाता है तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फिर भी 89 होती है. इसको यहां से हम देख सकते हैं. ये 60 है. इसको अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो ये देखें ये ऑलमोस्ट 89 पे आ जाता है, ऑलमोस्ट 90 पे आ जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि a big change, a relatively big change in partial pressure of जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसने जो है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया. ठीक है. नाउ
tissue still removes about 5 ml of oxygen from each 100 ml of blood passing through the tissues. ठीक है, टिश्यू यहाँ पे भी उन टिश्यूज को अभी भी 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिल रही है. ठीक है. नाउ टू रिमूव दिस ऑक्सीजन द PO2 ऑफ द वीनस ब्लड फॉल्स टू 35 mmHg. ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे ऊपर आर्टीरियल ब्लड की. वीनस ब्लड में क्योंकि होता 40 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे वही 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना कम होगा, वो 5 mmHg कम होगा, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा. ठीक है. सो इट मींस कि टिश्यू PO2 हार्डली चेंजेस डिस्पाइट द मार्क्ड फॉल इन एल्वियोलर PO2 फ्रॉम 104 टू 60 mmHg. ठीक है, यानी कि जो एल्वियोलर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा कम हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक था उससे तो बहुत ज्यादा कमी आ गई, एल्वियोलर प्रेशर से भी कमी आ गई, 104 से 60 पे आ गई, लेकिन जो टिश्यू PO2 है वो हार्डली चेंज हुई है, वो नहीं चेंज हुई. ठीक है, तो ये इसका बफरिंग एक्शन एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक. अच्छा, अब वो देखो, वो कहता है कि when the alveolar PO2 rises as high as 500 mmHg, the maximum O2 saturation of HB can never rise above 100%. ठीक है, 100% से ऊपर तो नहीं जा सकती ना. आइडियली हमने कहा था कि 95 पे, यानी कि 95 mmHg पे 97% होनी चाहिए. ठीक है, वो कहता है कि अगर हम इसको 500 mmHg पे भी ले जाएं तो फिर भी सिर्फ 3% मैक्सिमम बढ़ सकती है सैचुरेशन. ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो हीमोग्लोबिन है वो अपनी सैचुरेशन के थ्रू जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज है उसको बहुत जबरदस्त और बड़ी क्लोज रेंज में मेंटेन करता है. ठीक है, सो ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल O2 डिसॉल्व्स इन द फ्लूइड ऑफ द ब्लड. ठीक है, इतने हाई पार्शियल प्रेशर की वजह से जब एल्वियोलर प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाए आर्टिफिशियली, तो फिर भी बड़ा थोड़ी सी अमाउंट जो है वो एडिशनल ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होती है इन द फ्लूइड ऑफ द ब्लड. ठीक है. Now, when the blood passes through the tissue capillaries and loses several milliliters of oxygen to the tissues, this reduces the PO2 of the capillary blood to a value only few milliliters higher than the normal 40 mmHg. ठीक है, तो जब ब्लड जो है वो पास करता है टिश्यू कैपिलरीज में से और वो सेवरल मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को देता है, ठीक है, तो फिर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द कैपिलरी ब्लड जो है वो कितना होता है, इट्स ओनली अ फ्यू मिलीमीटर्स हायर देन द नॉर्मल 40 mmHg. फिर भी उसमें कोई बड़ी चेंज नहीं आती. ठीक है, सो लेवल ऑफ एल्वियोलर O2 में वेरी ग्रेटली. एल्वियोलर जो है लेवल जो है इसका O2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो चेंज कर सकता है फ्रॉम 60 टू मोर देन 500 mmHg, and still the PO2 in the peripheral tissues does not vary more than a few milliliters from normal. यानी कि एल्वियोलर जो पार्शियल प्रेशर चेंज है और जो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर चेंज है उसका टिश्यू की पार्शियल प्रेशर चेंज पे बड़ा मिनिमल इफेक्ट आता है, और यही जो है वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बफरिंग एक्शन या फंक्शन. ठीक है. अच्छा जी, अब आ गया, अभी हमने ये जो पढ़ा है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ठीक है, अब वो कहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं टू द राइट या टू द लेफ्ट. ठीक है, जो इसकी शिफ्ट कॉज कर सकते हैं. शिफ्ट कॉज करने का मतलब ये है कि जब हम इस डिसोसिएशन कर्व को देखते हैं, ये डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है, ये दिस डॉटेड वन इज शिफ्ट टू द राइट, दिस डॉटेड वन इज शिफ्ट टू द लेफ्ट. अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ये 4 फैक्टर्स उसने दिए हुए हैं, ये हम सारा पढ़ेंगे कि कौन सा फैक्टर इसको किस, जब बढ़ता है तो किधर लेके जाता है, जब कम होता है तो किधर लेके जाता है. ठीक है, तो ये भी एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि जो फैक्टर नेम द फैक्टर्स और
डिस्क्राइब द फैक्टर्स causing the shift of oxygen hemoglobin dissociation curve. ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें वो पहली चीज इस चार्ट में जो हमें दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि when the blood becomes slightly acidic, यानी कि उसकी pH कम हो जाती है, with the pH decreasing from the normal value of 7.4 to 7.2, the oxygen hemoglobin dissociation curve shifts on average about 15% to the right. ये 7.4 था, ये कहाँ पे आ गया, इसकी एसिडिटी कहाँ पे आ गई, ये नॉर्मल था, ये बिल्कुल न्यूट्रल पीएच थी, न्यूट्रल पीएच से एसिडिक हो गई, 7.2 पे आ गई। ठीक है, तो ये जो एसिडिक शिफ्ट है इन पीएच, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को किधर को शिफ्ट करती है, राइट पे। ठीक है, एक और बात यहाँ पे सुन लो, अच्छा हाँ, इसी तरह अगर ये अल्कलाइन हो जाए, 7.6 पे चला जाए, तो ये शिफ्ट किधर को कर रही है डिसोसिएशन कर्व को, लेफ्ट पे। अब एक बात यहाँ पे याद रख लो, जितनी ज्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा पीएच कम होगी, उतनी ज्यादा शिफ्ट टूवर्ड्स राइट होगी। और इसका मतलब क्या है, शिफ्ट टू राइट का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है, इट विल गिव अप मोर, इट विल बी गिविंग अप मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, ये शिफ्ट टू राइट का मतलब है। इसी तरह शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है कि द हीमोग्लोबिन विल बाइंड टू मोर एंड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब शिफ्ट टू राइट होती है तो फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिलीज होती है, जब शिफ्ट टू लेफ्ट होती है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, रिलीज नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हम बातें ज़हन में रख के आगे चलते हैं। An increase in pH from normal 7.4 to 7.6, यही जो भी हमने डिस्कस किया, shifts the curve a similar amount to left, यानी कि वही 15% उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देती है। ठीक है, और क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसकी शिफ्ट करते हैं, इंक्रीज्ड CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो शिफ्ट किधर को होगी, राइट को होगी, ऑक्सीजन ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की जो शिफ्ट है वो राइट को होगी। जब भी ब्लड टेम्परेचर बढ़ेगा तो शिफ्ट किधर होगी, राइट को होगी। जब इंक्रीज्ड, एक केमिकल है, एक कंपाउंड है 2,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, बीपीजी कहते हैं इसको एज एन एब्रीविएशन, a metabolically important phosphate compound present in the blood in different concentrations under different metabolic conditions. तो अंडर डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशंस जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो ये भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को या राइट को शिफ्ट करती है या लेफ्ट को शिफ्ट करती है। ज्यादा हो जाएगा तो राइट को शिफ्ट करेगा, अगर इसकी ये जो बीपीजी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो राइट को शिफ्ट करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हैं बेसिकली जो उसने यहाँ इस डायग्राम में भी दिखाए हैं कि ये शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को राइट पे शिफ्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने बताया कि जब ये डिसोसिएशन कर्व जो है ये राइट को शिफ्ट करेगा तो मोर ऑक्सीजन विल बी डिसोसिएटेड फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन, जब ये लेफ्ट को शिफ्ट करेगा तो लेस ऑक्सीजन वुड बी डिसोसिएटेड एंड मोर वुड रिमेन कंबाइंड विद दी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम आगे आ जाते हैं बोहर्स इफेक्ट पे। दो इफेक्ट है, एक बोहर इफेक्ट है, एक हेल्डेन इफेक्ट है, ये दोनों इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। बोहर इफेक्ट क्या कहता है, इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज व्हेन CO2 एंड हाइड्रोजन आयन शिफ्ट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है जब ये बढ़ते हैं तो ये कहाँ किधर को शिफ्ट करते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट पे। ठीक है, ठीक है, तो इसको कहते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली कि बोहर इफेक्ट क्या है।
a shift of oxygen hemoglobin dissociation curve to the right in response to increase in blood carbon dioxide and hydrogen ion levels has a significant effect by enhancing the release of oxygen from the blood in the tissues and enhancing oxygen of blood in the lungs. ठीक है, क्या करता है ये? एनहांस करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को फ्रॉम द ब्लड इन द टिश्यूज एंड और एनहांस करता है ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड इन द लंग्स. ठीक है, बड़ा कॉमन सेंस की बात है और दैट इज व्हाट एक्चुअली द बॉडी नीड्स एट दैट टाइम. ठीक है, बॉडी को इसी चीज की जरूरत होती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर आए. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को प्रोवाइड की. ठीक है, नाउ एज द ब्लड passes थ्रू द टिश्यूज, CO2 diffuses from the tissue cells into the blood. ये वो हमें बोर इफेक्ट समझा रहा है कि बोर इफेक्ट होता कैसे. As the blood passes through the tissues, CO2 diffuses from tissue cells into the blood. ठीक है, this diffusion increases the blood PCO2, which in turn raises blood H2CO3 carbonic acid and hydrogen ion concentration. ठीक है, जब डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन जो है कहां से कहां ब्लड जो है वो पास कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही है फ्रॉम टिश्यूज इनटू द ब्लड, जिसकी वजह से कि ब्लड PSO2 बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहां क्या होगा, इट वुड रेज द carbonic acid and H ion concentration. Now these effects shift the O2 hemoglobin dissociation curve to the right and downward, forcing O2 away from the hemoglobin. जो मैंने आपको बताया कि जब भी ये राइट को मूव करेगा और साथ डाउनवर्ड मूव करेगा तो O2 इससे रिलीज होगी and therefore delivering increased amounts of oxygen to the tissues. यानी कि जो बोहर्स इफेक्ट है ये बेसिकली असल में टिश्यूज में हो रहा है. ठीक है, कि ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म की वजह से या ज्यादा H आयन प्रोडक्शन की वजह से या ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके ब्लड में आई, कैपिलरी ब्लड में आई, आर्टीरियल कैपिलरी ब्लड में आई, उसने वहां से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से रिलीज करवा दिया. ठीक है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है टिश्यूज में तो वहां से जो कैपिलरीज गुजर रही होती हैं आर्टीरियल ब्लड लेके, उसमें से ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को रिलीज करवाती है ताकि टिश्यूज को वो ऑक्सीजन मिल सके, और जहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है ताकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में ले जाया जा सके और बॉडी से बाहर निकाला जा सके. ठीक है, अच्छा, अब लंग में इसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है. Exactly the opposite effects occur in the lungs, where CO2 diffuses from the blood into the alveoli. वहां पे क्या हो रहा था, CO2 टिश्यूज से ब्लड में डिफ्यूज हो रही थी. ठीक है, जहां बोर इफेक्ट. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 जो है वो ब्लड से एल्वेलाई में डिफ्यूज हो रही. ठीक है, now this diffusion reduces blood partial pressure of carbon dioxide and H ion concentration, shifting the O2 HB dissociation curve to the left and upward. ठीक है, तो लंग में क्या हो रहा है, लंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जा रही है, उसकी जगह पे अटैच क्या हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है, एंड ड्यू टू हाई एल्वेलर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है और आके उसकी जगह पे क्या लग रहा है, ऑक्सीजन लग रही है. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में जो बाइंडिंग साइट्स हैं बेसिकली वो एक ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी वही है और ऑक्सीजन के भी लिए भी वही है. जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाती है और बाहर चली जाती है, ये एल्वेलाई में होता है. और जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है जो टिश्यूज में होता है तो वहां पे ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाती है और टिश्यूज को मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है उन्हीं बाइंडिंग साइट्स. ठीक है, so therefore the quantity of oxygen that binds with the hemoglobin at any given alveolar PO2 becomes considerably increased, thus allowing greater O2 transport to the tissues. ठीक, तो ये था बेसिकली
हमारा बोहर इफेक्ट। अच्छा, अब वो बता रहा है कि जी इफेक्ट ऑफ बीपीजी, वो जो कंपाउंड हमने कहा था कि केमिकल कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट पे शिफ्ट कर देता है, उसका वो बता रहा है कि the normal BPG in the blood always keeps the O2 hemoglobin dissociation curve shifted slightly to the right। यानी कि इवन जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ बीपीजी इन द ब्लड है वो इतनी है कि वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को हमेशा थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्टेड रखती है टू द राइट। नाउ इन प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिक कंडीशंस द क्वांटिटी ऑफ बीपीजी इन द ब्लड इंक्रीजेस कंसिडरेबली, thus shifting the O2 hemoglobin dissociation curve even farther to the right। यानी कि अगर कोई हाइपोक्सिक कंडीशंस क्रिएट होंगी जहां पे के बीपीजी की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को और ज्यादा राइट पे शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बॉडी में हाइपोक्सिक कंडीशंस हैं और बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ पे है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड है। तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट को शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है कि more and more oxygen would be dissociated from the hemoglobin to be used by the tissues। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब वो बता रहा है कि जो राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी बढ़ जाती है। ठीक है, several factors shift the dissociation curve considerably to the right, thus delivering extra amounts of O2 to the active exercising muscle fibers। Now the exercising muscle in turn release large quantities of CO2। This and several other acids released by muscles increase the HN concentration in the muscle capillary blood। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक्सरसाइजिंग मसल जो है उसमें ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा बन रही हैं और दूसरे और भी बहुत से एसिड्स भी बन रहे हैं। ठीक है, जो कि मसल से रिलीज हो रहे हैं और वो एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जब हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब एचआईएन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? देयर वुड बी अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी इनडायरेक्टली यही इफेक्ट ला रही। ठीक है, और एक्सरसाइज में क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द मसल ऑफन राइजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है by 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड which can increase O2 delivery to the muscle fibers even more। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था इस डायग्राम में कि टेम्परेचर जो है इसको किधर को शिफ्ट करता है? राइट को। राइट को शिफ्ट करने का मतलब क्या है? कि ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो। ठीक है, अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस। चलो जल्दी से मैं ये बात आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है कि कोई भी कैपिलरी जो है ना, जो कोई भी टिश्यू जो है ना बॉडी का, वो एक एक्टिव सप्लाइंग न्यूट्रिएंट कैपिलरी से 50 माइक्रोमीटर से दूर नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। कुछ पैथोलॉजिकल स्टेट्स में या वेरी रेयरली फिजियोलॉजिकली भी कुछ टिश्यूज जो है वो इससे ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं कैपिलरीज से। ठीक है, जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि the rate of O2 diffusion to these tissue can become so slow that the intracellular PO2 falls below the critical level required to maintain maximal intracellular metabolism। ठीक है, क्योंकि देखो जाना तो ऑक्सीजन ने न्यूट्रिएंट कैपिलरी से टिश्यू तक थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड गुजर के जाना तो थ्रू डिफ्यूजन ही है ना। ठीक है, बाय किस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से जाना है? सिंपल डिफ्यूजन से जाना। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब है डिफ्यूजन स्लो हो गई, और बाज़ सूरतों में, बाज़ पैथोलॉजिकल स्टेट्स में ये डिफ्यूजन इतनी कम हो सकती है कि जो इंट्रासेलुलर PO2 है वो फॉल कर जाएगी क्योंकि उसको इन टाइम ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, इट फॉल्स बिलो द क्रिटिकल लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन मैक्सिमल इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से कि
इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होना शुरू हो गया। देखो ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, सो अंडर दीज कंडीशंस ऑक्सीजन यूजेज बाय द सेल्स is diffuse and limited and is no longer determined by the amount of ADP formed in the cells। यानी कि यूजुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आपकी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैं आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं रहा, लेकिन बस क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ये बताया हुआ है कि जितनी एडीपी बनती है, ठीक है, जितनी एडीपी बनती है उतना ज्यादा O2 यूज होता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि ये नॉर्मली है उन सेल्स में जहां पे के जो के एक न्यूट्रिएंट कैपिलरी से 50 माइक्रोमीटर से कम डिस्टेंस पे हैं, लेकिन जो ज्यादा डिस्टेंस पे हैं या अगर कोई पैथोलॉजिकल स्टेट है तो ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि डिफ्यूजन बहुत स्लो हो जाती है। ऐसी सूरत में जो यूजेज ऑफ ऑक्सीजन है बाय द सेल्स, ठीक है, ऑक्सीजन यूजेज बाय द सेल्स इज डिफ्यूजन लिमिटेड है, यानी कि उस पर डिफ्यूजन जो है वो रेगुलेटरी फैक्टर बन जाता है और एडीपी की फॉर्मेशन जो है वो रेगुलेटरी फैक्टर नहीं बनता, क्योंकि जब तक डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी नहीं, ये एडीपी जो है ये एटीपी में दोबारा से कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे हम कहते हैं कि एडीपी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है जी, अच्छा जी, अब और हम देखें तो इट्स ऑलरेडी 11, ये तो तकरीबन 11 बज गए। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिजॉल्व स्टेट में भी ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। हमने कहा ना कि जी मेनली तो उससे होती है। So at the normal arterial PO2 of 95 mg, about 0.29 ml of oxygen is dissolved in every 100 ml of water in the blood when the PO2 of the blood falls to the normal 40 mmHg in the tissue capillaries. ठीक है? So when the PO2 of the blood falls to the normal 40 mmHg in the tissue capillaries, only 1.12 ml of O2 remains dissolved. ठीक है, तो नॉर्मली एट 95 mHg जो डिजॉल्व फॉर्म में होती है वो सिर्फ 0.29 ml ऑफ O2 होती है इन एवरी 100 ml ऑफ वाटर ऑफ ब्लड, यानी कि प्लाज्मा में होती है। ठीक है, तो यानी कि वही बात कि 97% जो है वो थ्रू हीमोग्लोबिन जाती है और 3% जो है वो थ्रू जाती है डिजॉल्व स्टेट में। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो डिजॉल्व स्टेट वाली ऑक्सीजन है वो और कम हो जाती। ठीक है, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज व्हेन हीमोग्लोबिन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इंक्रीजेस बाय another 3 folds, the relative quantity of O2 transported in the dissolved state falls to as low as 1.5%, 3% से 1.5% पे आ जाती। ठीक है जी, चल और आगे चलते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक बड़ी मशहूर पॉइजनिंग है और ये काफी लीथल है। ठीक है, बड़ी डेंजरस कंसिडर की जाती है। ये भी थोड़ी सी मेंशन हुई है, इसको भी ब्रीफली देख लेते हैं, पर यही आप बस इसके बाद हम आज खत्म कर देंगे आज का लेक्चर। सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन, इसकी भी बाइंडिंग साइड वही है जहां ऑक्सीजन बाइंड करती है। इसकी जो बाइंडिंग टेनेसिटी है, टेनेसिटी मींस कि ये 250 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए ये इट कैन देयरफॉर डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। खतरनाक बात इसमें यह है कि
ये बड़े ही थोड़े पार्शियल प्रेशर्स पे ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है उसको ये सैचुरेट कर देती है। यानी कि 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है इट इज सैचुरेटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉट ऑक्सीजन, इवन एट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.4 mmHg। ठीक है, ठीक। So it allows the carbon monoxide to compete equally with the O2 for combination with the hemoglobin. ठीक, this causes 50% of the hemoglobin in the blood to become bound with carbon monoxide instead of oxygen. So therefore, a carbon monoxide pressure of only 0.6 millimeters of mercury, ठीक है, can be lethal. ये lethal हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आती है कि O2 कंटेंट of blood is greatly reduced in carbon monoxide poisoning, जबकि उसका पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ ऑक्सीजन वो ब्लड में हमें नॉर्मल नजर आएगा। उसकी सैचुरेशन नहीं हुई होगी लेकिन हमें उसका पार्शियल प्रेशर नॉर्मल मिलेगा ना, उसका कलर चेंज होता है ब्लड का, ब्लड जो है वो हमें बिल्कुल ब्राइट रेड मिलता है। ठीक है, so this situation makes exposure to carbon monoxide especially dangerous because the blood is bright red and there are no obvious signs of hypoxemia. Hypoxemia क्या होता है? Decreased oxygen in blood. Hypoxia क्या होता है? Decreased oxygen in tissues. ठीक है, तो क्योंकि हमें कोई डिक्रीज्ड साइंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड नहीं मिलते, यानी कि साइनोसिस नहीं मिलता, ब्लू कलरेशन नहीं मिलती, ना फिंगर टिप्स की ना लिप्स की। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत डेंजरस है कि ये हमें पता ही नहीं चलने देती कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, और क्योंकि पार्शियल प्रेशर भी कम नहीं होता और हमें कोई ऐसा साइन सिम्टम भी साइनोसिस वाला नहीं मिलता। ठीक है, क्यों? और ब्रेन, और तीसरी खतरनाक बात यह है कि ब्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्लूकोज यूज करता है और ऑक्सीजन लैक की वजह से सबसे ज्यादा वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर ब्रेन ही काम करना छोड़ दे तो इंसान डिसओरिएंटेड हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और वो इस डेंजर से अवेयर ही नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये बहुत लीथल। ठीक है, चलो बाकी अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो फिर अब हम इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में टेकअप करेंगे। इसको ख़त्म तो आज होना चाहिए था लेकिन ये छोटा टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में अपने दूसरे टॉपिक के साथ इसको मैं मैनेज कर लूँ। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, अल्लाह हाफ़िज़।